Gems and jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. اللہ کے اثرات ہیں. سورج کی تپش سے انسان کو صحت ملتی ہے. چاند کی ٹھنڈک سے انسان کو سکون ملتا ہے. پانی کے پینے سے انسان کی پیاس بجھتی ہے. اسی طریقے سے ایک صحیح گوہر کے استعمال سے انسان کی زندگی میں جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے. اپنی منزل کو انسان پہنچ سکتا ہے, خوشحال رہ سکتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں, پریشانی پیسوں کی ہو, پریشانی صحت کی ہو, آپ شادی بیاہ کے بارے میں پریشان ہو, بار بار تلاش کرنے کے بعد بھی نوکری نہیں مل رہی ہو, کاروبار میں ترقی چاہتے ہوں, یا پھر بیرونی ملک جانا چاہتے ہوں, یا پھر کوئی بھی مشکلات ہوں, اس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں. راسک جیمز اینڈ جویلرز. راسک جیمز اینڈ جویلرز. Only one visit can change your life. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا دوست احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ کسی بھی طرح کا سوال کر سکتے ہیں, خاص کر کے وہ لوگ جو بزنس کو لے کے پریشان ہیں, ان کا بزنس کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے, یا نیا بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں, یا وہ لوگ جو نوکری سے پریشان ہیں ان کی نوکری نہیں لگ رہی ہے, یا وہ لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی یا شادی سے پریشان ہیں, یا وہ لوگ جو غصہ کریں, مطلب کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو تو اس پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں. پروگرام میں ہمارے ٹی وی اسکرین پر نمبر اسکرول ہو رہے ہیں. جو حیدرآباد کے اور آس پاس کے ناظرین تعلق رکھتے ہیں حیدرآباد یا آس پاس کے اضلاع سے, وہ دیے ہوئے نمبروں پہ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بنگلور اور آس پاس کے اضلاع سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر روشن صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں, اور حیدرآباد کے لوگ جو ہے ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب سے بات کر سکتے ہیں. اور ناظرین میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب کے دورے گلف کنٹریز میں بھی ہو رہے ہیں, تو وہ آنے والے منگل اور بدھ اور جمعرات یعنی کہ 4 شنبہ اور جمعرات کو وینسڈے اینڈ تھرسڈے وہاں پہ دبئی میں اور عمان اور آس پاس کے جو کنٹریز ہیں وہاں پہ رہیں گے. تو آپ لوگ جو ہے سب سے پہلے ایک کام کیجئے کہ آپ ایک نمبر نوٹ کر لیجئے, اس پہ کال کر کے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کافی بزی رہیں گے, تو اس وجہ سے آپ لوگوں کا ملنا بغیر اپائنٹمنٹ کے مشکل ہو جائے گا. آپ جو ہے نمبر نوٹ کر لیجئے. ہمارا نمبر ہے 05080297979. نمبر ایک بار پھر آپ نوٹ کر سکتے ہیں 05080297979. ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب سے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے, بتانے کی ضرورت نہیں, ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب ہندوستان کی جانی پہچانی ایک اہم شخصیت بن چکے ہیں, بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جانے جاتے ہیں. اور آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے جو چینل ہیں دیگر زبانوں کے, خاص کر کے تیلگو کے, اس پہ بھی آپ آ کے پروگرام دے رہے ہیں اور اپنے تجربے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ناظرین آپ اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے. شکریہ جناب, شکریہ. آپ جو اگلے ہفتے آنے والے دنوں میں دبئی کے دورے پہ رہیں گے, عمان وغیرہ کے دورے پہ رہیں گے, تو ظاہر ہے کہ ناظرین جو مطلب ملنا چاہ رہے تھے, کئی بار لوگوں نے فون بھی کیا, تو اس بار ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. اسی کے لیے تو ہم نے پلان کیا ہے. انشاءاللہ ہم اس بار بدھوار مطلب 4 شنبہ کے دن اور جمعرات کے دن انشاءاللہ دبئی میں رہیں گے انشاءاللہ. جی. تو سب سے پہلے ایک کالر کو شامل ضرور کریں انشاءاللہ. پروگرام میں. آئیے ناظرین سب سے پہلے اپنے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں صاحب کہاں سے کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم بنگلور سے نور جہاں بول کے, میرا نام نور جہاں صاحبہ بنگلور سے. آپ کو اپنے بارے میں بات کرنا ہے؟ جی میرے بارے میں ہی بات کرنا ہے. اپنی تاریخ پیدائش بتا دیجئے. جی وہ ٹھیک سے پتہ نہیں ہے. جی والدہ صاحبہ بول سکتے ہیں. جی والدہ صاحبہ کا نام بتا دیجئے پھر. رحمت النساء ہے. رحمت النساء. جی جی جو بھی آپ کو سوال کرنا ہے, کچھ بھی پوچھنا ہے, ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ڈائریکٹ ان سے سوال کر سکتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم نور جہاں صاحبہ. وعلیکم السلام. میری بہن بتائیں کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے, آپ سب کی دعا ہے. ماشاءاللہ. ہمارا گھر بننے کو ہے, وہ اس میں بہت رکاوٹ ہو رہی ہے. کتنا بھی کوشش کرو کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتے جا رہا ہے اس میں. گھر کے لیے رکاوٹیں آ رہی ہیں. جی انشاءاللہ وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. ہم ایک نسخہ بتائیں گے, انشاءاللہ فالو کیجئے گا. جیسے کہ نور جہاں اور اپنے رحمت النساء کا جو نام بتایا, اس کے حساب سے دیکھا جائے تو ہیلپنگ نیچر ہیں, ہارڈ ورکر ہیں آپ,
खुददार हैं आप, खुद पैसा कमाने वाली हैं और दूसरों की ज़्यादा मदद करने वाली हैं। जैसे कि आपने घर की बात कही तो घर के लिए बता दूं मैं, हर इंसान की ज़िंदगी में ये ख्वाब होता है कि खुद का अपना आशियाना हो, छोटा ही से खुद का अपना घर हो। घर के लिए इंसान बहुत कोशिशें करता है। कितने लोग मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनके पास पैसा होने के बावजूद सही घर नहीं मिल पाता। तो घर का एक बहुत बड़ा खुशी का मरहला होता है। घर इंसान कब बनाता है? जब रोटी मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, तो तीसरा मकाम होता है घर बनाना। रोटी, कपड़ा और मकान जिसको कहा जाता है, ये हिसाब से तो घर बनाना इंसान के लिए बहुत बड़ी खुशी का माहौल होता है। इंशाल्लाह खुश रहिएगा। जो रुकावटें आ रही हैं आपके नाम के हिसाब से देखा जाए, 2014 नवंबर के बाद थोड़ा मुश्किलात बहुत आ रही हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो में सैटर्न बैठा हुआ है 2014 नवंबर से, जिसकी वजह से रुकावटें आ रही हैं, मतलब डिले हो रहा है, पोस्टपोन्ड हो रहा है। सबसे पहले आपके जायचे में बता दूं, सन थोड़ा वीक है, जिसकी वजह से लाइफ में स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट रुका हुआ है। और आपने जो सवाल किया घर के मुताल्लिक से, घर के लिए स्पेशली आपको मार्स को डेवलप करना है, क्योंकि मार्स को कहा जाता है घर देने वाला, लैंड देने वाला, प्रॉपर्टी देने वाला, ज़मीन देने वाला, मकान देने वाला, जो चीज़ भी होता है सितारों में वो है मार्स, जिसको मंगल भी कहा जाता है। तो ये हिसाब से आप मार्स को डेवलप करना है, जिसके लिए आपको रेड कोरल कहा जाता है, मिनिमम 5 कैरेट का रहना है, उसके ऊपर लीजिए, इंशाल्लाह 6-7 कैरेट का लीजिए। साथ में एक रूबी बनाइए, क्योंकि थोड़ा हेल्थ का यहाँ पे थोड़ा इश्यूज दिखा रहा है, थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह बाहर निकलने के लिए और आपका मकान पूरा होने के लिए एक रेड कोरल मिनिमम 7 कैरेट का, साथ में एक रूबी 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने, इंशाल्लाह ताला आप जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। और एक बात आपको बता दूं, आप बेंगलुरु से कॉल कर रहे हैं, बेंगलुरु में हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब रहते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, तो इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात कर सकती हैं और जवाहरत के मुताल्लिक सवालत कर सकती हैं। नंबर्स पर आप कॉल कर लीजिए, इंशाल्लाह ताला जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे, खुशहाल रहेंगे। रही जो अपने जो घर की बात की, ये जवाहरात पहनने के बाद मुकम्मल हो जाएगा 2016 नवंबर से पहले, इंशाल्लाह आप घर में दाखिल हो जाएंगे, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए। जी बंद कर दिया है। नाम बताइए। मेरा नाम है फिरोज इब्राहिम खान। फिरोज इब्राहिम खान जी, आपको अपने बारे में सवाल करना है? जी मुझे अपने बारे में करना है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पूना से बोल रहा हूँ सर। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपना। 24 मार्च 1972। वक्त बताएंगे कुछ? सुबह के 1 बजे के करीब। सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो मतलब 24 मार्च लग चुकी थी ना, 24 मार्च हो गई थी ना? हाँ 24 मार्च दोपहर में, पीएम में। 24 मार्च पीएम में, अच्छा दोपहर में आपकी पैदाइश हुई। जी आप क्या जानना चाहते हैं, क्या परेशानी? डॉक्टर एमिन रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट खुद सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम फिरोज इब्राहिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले हमें मौका मिला आपके बर्थडे की मुबारकबाद पेश करने के लिए। हम पहले इंसान होंगे जो इस बार आपका मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि 5 दिन पहले हम आपको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि ये बर्थडे आपके लिए खुशियां लेकर आए, जिंदगी में खुशहाल रहे। बताइए मेरे भाई, क्या जानना है आपके बारे में? आमीन। सर पहली बात तो आपके शो के बारे में बताना चाहता हूँ। बताइए मेरे भाई। ये शो मैं करीबन 1 साल से देख रहा हूँ। माशाल्लाह। तो हमेशा लाइन के लिए कोशिश करता था, लेकिन कभी लगता नहीं था। आज लग गया सर। चलो अच्छी बात है। और बताइए क्या जानना है अपने बारे में, शो कैसा लगता है अपना? जी सर बहुत बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। शुक्रिया जाना, बताइए। ये हमारा लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। शुक्रिया जाना, बताइए क्या जानना है अपने बारे में? सर मैं जानना चाहता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ ना सर, अभी मेरा एज करीबन हाफ एज है सर, लेकिन हमेशा मैं सब दूसरों के लिए ही करता गया, लेकिन मेरा कभी ठीक नहीं होता है। मीन्स थोड़ा आता है और निकल जाता है, थोड़ा आता है निकल जाता है, तो मीन्स कभी भी सेटिस्फाइड होता नहीं है। हर कोई यूज करता है और बस इसी में चला जाता है मेरा टाइम। इंशाल्लाह हम बता देंगे मेरे भाई, आप आराम सुनिएगा। आप जो बताए छोटा सा अधूरा सवाल है आपका, हम पूरा आपको बता देंगे। जैसे कि आपने जो डेटा पर बता दिया, आपने टाइम भी दे दिया एक्यूरेट, उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जो असेंडेंट बना है सजिटेरियस का, तो सजिटेरियस के अंदर जो जुपिटर बैठने का क्या होता है, हेल्पिंग, दूसरों को ज़्यादा हेल्प करते हैं, हेल्पिंग नेचर है आपका, दूसरों की ज़्यादा मदद करते हैं, लोगों के लिए ज़्यादा जीते हैं, थोड़ा शान के लिए जीते हैं। अगर कोई बोल दे इब्राहिम साहब फला फला, थोड़ा आपकी तारीफ़ कर देंगे तो आप थोड़ा ज़रा शान में भी भर जाएंगे और आप उनका पूरा फुलफिल कर देंगे। बाद में थोड़ा आपको वो खामियाजा भुगतना पड़ता है, थोड़ा परेशानी भी होगी आपको, क्योंकि शान के लिए जीने वाले इंसान हैं आप, थोड़ा शान ज़्यादा दिखाते हैं, ये दिखा रहा है। दूसरी बात है, आपका जो 90वें घर का जो मालिक होता है, किंग मेकर, इंसान को किंग बनाने वाला। किंग का मतलब क्या होता है? एक सेटलमेंट लाइफ देने वाला, एक स्टेबिलिटी देने वाला जो कहा जाता है, नहीं तो उसको कहा जाता है वो सन होता है। सन थोड़ा रेट्रोग्रेड में बैठा हुआ है, गर्दिश में है,
रेट्रोग्रेडेड का मतलब होता है गर्दिश में है, जिसकी वजह से लाइफ में ना अभी तक स्टेबिलिटी मिला, ना डेवलपमेंट मिला, ना इंप्रूवमेंट मिला। साथ में देखा जाए तो हेल्थ को भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है आपकी। सेकेंडरी आपका जो मूड भी थोड़ा खराब है, जिसकी वजह से सुकून चला गया है, खुशी चली गई है, मूड स्विंग्स में है। आपका मिजाज कैसा है, एक काम करते हैं, जब वो काम सूटेबल नहीं होता तो दूसरा काम करते हैं, आप जंप करते रहते हैं, वो काम किया कुछ नहीं मिला, दूसरा काम किया कुछ नहीं मिला, ऐसा मिजाज बन चुका है, जिसके नतीजे में जिंदगी में 43 साल 43 ईयर्स हो गया, लाइफ सेटलमेंट अभी जीरो में है। इस जीरो से बाहर निकलने के लिए हम जो बता रहे हैं इंशाल्लाह फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपको रूबी पहनना है, याकूत कहा जाता है 3 कैरेट का, साथ में एक मोती पहनना है, केशी पर्ल भी कहते हैं, दोनों बनाकर मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। लॉकेट बनाकर गले में पहन सकते हैं या अंगूठी भी पहन सकते हैं। रूबी के लिए आपको रिंग फिंगर में पहनना है, मोती के लिए आपको लिटिल फिंगर में पहनना है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। इंशाल्लाह ये 2 स्टोन्स पहनने के बाद, दूसरी बात बताता हूं, आप बहुत जल्दी भरोसा कर देते हैं, आप इमोशनल पर्सनालिटी, जज्बाती इंसान हैं, जज्बाती इंसान जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बी ए प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल बन जाओ। करने से पहले सोच लो कि शुरुआत से पहले अंजाम को सोच लो। जब तक तुम अंजाम को नहीं सोचोगे, नुकसान ही नुकसान रहेगा। इंशाल्लाह नुकसान से बाहर निकलने के लिए मैं जो स्टोन्स बताया इसको फॉलो कीजिएगा, ये दोनों बनाकर पहनेगा। बाकी जानकारी के लिए हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। जवाहरात किस तरीके से मंगवाना है, कैसे मंगवाना है, उसके लिए आप जानकारी ले सकते हैं। ये पहनने के बाद इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद आसिफ जम्मू से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद आसिफ जी। आसिफ जम्मू कश्मीर से जी। तारीख पैदाइश बताइए आप अपनी। 21 जून 1988। वक्त कुछ बताएंगे, मालूम है? नहीं, वक्त नहीं मालूम। ठीक है, आपको क्या जानना है, क्या परेशानी है? डॉक्टर इमाम रजा साहब से आप बात कीजिए डायरेक्ट। जी रजा। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आसिफ साहब। वालेकुम सलाम साहब। जना बताइए कैसे हैं आप? ठीक है सर। बताइए क्या जाना, जॉब की मुश्किलात हैं? एक्चुअली मेरी बात हुई थी आपसे थोड़े दिन पहले। ओके। तो आपने मुझे रूबी और एक मोती पहनने के लिए बोला था सर। ओके, पहन लिया आपने? नहीं, अभी पहनना नहीं, तो मैं वही वक्त जानने के लिए फोन किया कि किस वक्त पे उसको पहनना, टाइम क्या होगा। इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको। रूबी पहनना है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, जिसकी मकदार जो वजन होता है 3 कैरेट का रहना है। रिंग फिंगर में पहनना है, साथ में मोती 3 कैरेट का रहना है, लिटिल फिंगर में पहनना है। गले में लॉकेट भी पहन सकते हैं। लॉकेट एक अच्छा फार्मूला रहेगा, क्योंकि किसी की नज़र भी नहीं पड़ेगी और अच्छा काम भी करेगा। जब पानी नहाते हैं या स्नान करते हैं उस टाइम में भी अच्छा काम करेगा आपको। और दूसरी बात जो होती है, किस समय में पहनना है, आप स्टोन्स खरीदने के बाद हम बता सकते हैं। यूजुअली उसको पहनना है आपको संडे के दिन पहन सकते हैं। सुबह नमाज फजर पढ़कर 2 रकात नमाज शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आप उसकी नेमत को पहनने के लिए, मतलब दिमाग में आपको आया कि अल्लाह ने ये तौफीक दी। जवाहरात पहनना कोई मामूली चीज़ नहीं है। जब तक अल्लाह की तौफीक नहीं होगी कोई जवाहरात नहीं पहन सकता, क्योंकि जवाहरात में वो असर है। कुरान मजीद में भी इसका जिक्र किया गया, नेमतों में शुमार किया गया है। मैं पहले बार बार कह चुका हूँ। तो जिस इंसान को तौफीक होती है वही जवाहरात पहनता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत से अहादीस हैं जम्स के बारे में, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तमाम अनबिया कराम ने अंगूठियाँ पहनी हैं, तमाम औलिया कराम जितने भी हैं अंगूठियाँ पहनी हैं, औलिया खास ने अंगूठियाँ पहनी हैं। तो अंगूठी पहनने के बहुत फायदे होते हैं। जब तक अल्लाह की तौफीक नहीं होती इंसान अंगूठी नहीं पहन सकता। तो लोग क्या करें, नेगलेक्ट सोचते थे क्या करेगा, पत्थर कैसे काम करेगा, कैसा करेगा, क्या करेगा, दिमाग में आ जाता है, क्योंकि तौफीक नहीं होती। जब तौफीक होती है इंसान जानकारी करता है। क्योंकि सूरह कुरान में सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, हमने इंसान को अक्ल के साथ हिकमत भी अता की है, अक्ल दिया है। अक्ल इंसान को हमने अक्ल किस लिए दिया है कि हमने तमाम दुनिया बनाने के बाद इंसान को चाहिए कि अक्ल का इस्तेमाल करें। जब तक इंसान अक्ल इस्तेमाल नहीं करेगा उसको कोई तौफीक मिलने वाली नहीं है। इंशाल्लाह आपको तौफीक हो चुकी है। तो ये 2 स्टोन बनाकर पहनना है। पहनने का दिन होता है संडे के दिन, नमाज फजर के बाद 2 रकात शुक्र की नमाज अदा करें, उसके बाद पहने, इंशाल्लाह आपको खुशियां मिलेंगी। अगर आपका संडे मिस हो गया, मंडे भी पहन सकते हैं या थर्सडे भी पहन सकते हैं, जुमेरात के दिन पहन सकते हैं, मंडे भी पहन सकते हैं। अगर देखना है आपको उस दिन क्या है, अमावास ना हो, जैसे कि जो चांद की आखिरी रातें होती हैं जिसको 27, 28, 29 जैसे कहा जाता है, उस टाइम पे अंगूठी को नहीं पहनना है। तो ये हिसाब से आप ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बनाकर पहनिएगा। बाकी जानकारी के लिए हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। मंगवाने के लिए सोर्सेस दुनिया भर में सप्लाई है, राशि की तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से। ये सब इंशाल्लाह मिल जाएगा, आपको असली पत्र मिल जाएगा।
जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे अच्छा यही रहेगा कि जैसे आपने बताया इनको दिन का और वक्त का, तो बेहतर यही रहेगा कि आपके जो बनवाने के बाद एक जी बार हाँ। बना दिया तब फोन करना है। जी हाँ। अभी हम बता देंगे पता नहीं, वो संडे कोई संडे भी पहन लेंगे, जी, संडे जी, जी, अमावस भी आ सकती है, जैसे जी, कि जी। चांद की आखिरी रात्रि जगह चांद जब छुप जाता जी है हाँ। 27, 28, 29 जो होता है, ऐसे टाइम अगर पहनेंगे तो उसका उतना असर नहीं रहता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ब्राइट जो कहा जाता है, जो चांद की जो पहली तारीखें होती हैं उसमें अगर पहने इंशाल्लाह ताला बहुत मुफीद रहेगा, बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि वक्त भी असर करता बिल्कुल, है। बिल्कुल। हमने लास्ट 6 महीने पहले कुछ हम डिस्कस किया था वक्त के बारे जी में। हाँ। जब सिकंदर पैदा हुआ तो जी। होने से खिज़र पैगम्बर अलैहिस्सलाम के जो फादर थे, उनके जो वालिद साहब थे, तो बीवी से कहते हैं तो ये फलां वक्त में अगर हम दोनों मिलेंगे तो एक अच्छा बच्चा पैदा हो जो दुनिया को हुकूमत करेगा। तो पड़ोस वाली सुन लेती है, तो ये काम में लग जाते हैं। तो बीवी से कहते हैं बेगम साहिबा जब हम जो वक्त बताएं वक्त में हम जगाएं, हम तब मिलेंगे इंशाल्लाह, एक अच्छी औलाद पैदा होगी। तो ये बेगम साहिबा को नींद आ जाती है, वो काम में मसरूफ हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो पड़ोस वाली जब सुन लेती है तो हस्बैंड को जगाती, दोनों मिलते हैं, तो पैदा हुआ सिकंदर, पूरी दुनिया को फतह किया। जी। ये तारीख है हमारे पास। बाद में जब बोलते हैं मिस हो गया वक्त, खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद बोलते हैं, बाद में क्या करते हैं और एक दूसरा वक्त है मिलेंगे, तो जब दूसरा वक्त मिलते हैं तमाम दुनिया का इल्म उनके पास है। जी। तो वक्त भी माने रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक जवाहरात पहनने के लिए हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, हम क्या करते हैं उनको पूरा सजेस्ट देने के बाद फलां दिन पे पहनना, फलां वक्त पर पहनना है, फलां दिन पहनना है, हम पूरा उनको गाइड करते जी। हैं, तभी तो जाके रिजल्ट निकलता है। क्योंकि इंसान की जिंदगी बदलना बोले तो मामूली चीज नहीं है ना। अभी क्या हुआ, ऑफिस में हम आने से 1 घंटा पहले एक औरत आई थी, उनके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। जी जी। अल्लाह सभी अच्छी अक्ल दे, क्योंकि इतना अक्ल देने के बाद भी पता नहीं गुमराह में इंसान चला जाता जी। है, जहालत में चला जाता है। सुसाइड कर लिया। तो वो औरत डिप्रेशन में थी, परेशान थी। तो उनके भाई मेरे पास आए थे, तो बहन को लेकर आए। जब इन्फॉर्मेशन पूरा दिया, जब बात किया, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अगर 3 साल पहले मैं आ जाती, 3 साल की जिंदगी बच जाती। मतलब 15 मिनट का जब डिस्कशन हुआ, जब हमने इन्फॉर्मेशन दिया कि आपका क्या चल रहा है, कैसा है, आपको कैसा हुआ, क्या हुआ, जब बताया तो शी इज फीलिंग रिलीफ। वो बोल रही है 3 साल पहले ये दुर्घटना हमारे घर में गुजरी, लेकिन अभी 3 साल से बहुत परेशान थी, डिप्रेशन में थी। बच्ची का ख्याल, एक बेटी भी है उनको, बच्ची का ख्याल नहीं रख पा रही थी। मेरी समझ रही थी कि जिंदगी इतनी है, मैं खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह ने आपको फरिश्ते के जरिए आपको भेजा। आपने जो प्रोग्राम, हमारा भाई आपके पास है, हमारे भाई को अच्छा हुआ, आप भी आ गए। तो ये हुआ। तो मतलब क्या है, जब इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब लड़की जो इतना उनको फीलिंग हुआ, जो हैप्पी फीलिंग हुआ, बता दिया जिंदगी क्या होने वाली है, कैसी होने वाली, हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज जवाहरात हैं, अभी हम बताए ना, तौफीक होना है पहनने के लिए, सही, सही। कोई मामूली चीज नहीं है जवाहरात पहने के हिसाब से। अगर एक बार इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अगर आप जवाहर पहने, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। मरहला जो भी हो, जो भी मसला हो, जो भी मुश्किल हो, हर मुश्किल के लिए सलूशन मिलेगा जवाहरात में। इंशाअल्लाह ताला खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने खास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर एम रज़ा साहब। किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाने जाते हैं, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं और तकरीबन 50,000 लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं। और अब जो है आने वाले बुध और जुमेरात को आप जो है दुबई और ओमान के दौरे पर जा रहे हैं। तो जो दुबई और ओमान या आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोग अगर डॉक्टर इमरान रज़ा साहब से मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने परेशानियों का हल जानना चाहते हैं, तो एक नंबर नोट कर लीजिए, उस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा नंबर है 05080297979। नंबर एक बार फिर आप नोट कर सकते हैं 05080297979। इस पर कॉल करके आप जो है पहले से वक्त ले लीजिए। डॉक्टर इमरान रज़ा साहब जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं डॉक्टर साहब, और एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। पहले कॉलर हमारे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? जी, हम अकोला महाराष्ट्र से कौसर अंजुम बात कर रहे हैं। हमारे वालिद साहब का मसला है। कौसर अंजुम साहब, आपके वालिद साहब का क्या नाम है? मोहम्मद कबीर अहमद। मोहम्मद कबीर अहमद। उनकी तो तारीख पैदाइश बता दीजिए। तारीख डेट ऑफ बर्थ नहीं है सर, उनकी अम्मी जान का नाम आरिफा खातून है। आरिफा खातून।
जी, क्या जानना चाहती हैं आप अपने वालिद साहब के बारे में? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी ये खुशनसीबी है कि आप डायरेक्ट बात कर सकती हैं उनसे। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम कौसर अंजुम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम सर। मेरी बहन, इससे पहले भी आप बात कर चुकी हैं इस शो में? जी हाँ, पहले भी बात कर चुके। किसके लिए बात किया था उस टाइम पे? जी सर। उस वक्त पर किसके लिए बात किया था? डैडी के लिए बात किया था और किसी के लिए बात किया था? हमने हमारे बारे में पूछे थे सर आपसे। माशाअल्लाह। तो अभी डैडी का नाम कबीर है या खदीर है? कबीर, कबीर मोहम्मद कबीर है। कबीर। काफ बे ये ओके, काफ बे ये रे, कबीर। तो क्या जानना है अपने वालिद साहब के बारे में? जी सर, अब्बू के सेहत का मसला है और 3 साल से हेडमास्टर की पोस्ट संभाल रहे हैं सर, लेकिन अभी तक प्रमोशन कुछ मिला ही नहीं सर। प्रमोशन रुका हुआ है, थोड़ा सेहत भी खराब है, थोड़ा परेशान। इंशाअल्लाह सेहत ठीक हो जाएगी, प्रमोशन भी मिल जाएगा। हम जो बता रहे हैं फॉलो कीजिएगा। जैसे कि आप जो नाम बताया कबीर के हिसाब से और आरिफा खातून जो नाम बताया अपने माँ का नाम, इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन किया जाए तो देखा जाता है कि जमीनी का मून सेन बनता है। तो एजुकेशन फील्ड तो ऑलरेडी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो एक अच्छे टीचर हैं, हेडमास्टर भी माशाल्लाह से हो चुके हैं। थोड़ा प्रमोशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्योंकि सन थोड़ा ख़राब है, जिसकी वजह से लाइफ में स्टेबिलिटी रुक चुका है, डेवलपमेंट रुक चुका है, प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रहा है। साथ में जुपिटर भी ख़राब है। जुपिटर जो होता है तरक्की देने वाला, इम्प्रूव करने वाला, आगे आला दर्जे पर लेकर जाने वाला, जिसको प्रमोशन कहा जाता है, एलिवेटर कहा जाता है, ऊपर लेकर जाने वाला कहा जाता है। जुपिटर खराब है। सन खराब होने के कारण क्या होता है, लॉन्ग टर्म बीमारी कहा जाता है, ब्लड प्रेशर रहेगा, शुगर भी आएगी और बॉडी पेन्स रहेंगे, बिकॉज सन पूरा बुरी तरह से खराब है, जिसकी वजह से ये मुश्किलात आपके अब्बू की लाइफ में आ रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपके अब्बू को चाहिए कि एक याकूत पेन रूबी कहा जाता है, साथ में एक येलो सफायर पुकराज कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनाएगा। इंशाल्लाह ताला प्रमोशन रही बात 2016 जुलाई के बाद मिल जाएगा। सेहत भी अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो कौसर अंजुम साहिबा, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके वालिद साहब की तरफ से जो डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया है उस पर अमल करेंगे और इंशाल्लाह परेशानियों से छुटकारा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नसरीन परवीन एमपी से बोल रही हूँ। नसरीन परवीन, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी, मेरे बारे में। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। सर मेरी तारीख है 1978, 22 या 23 जुलाई। तारीख ठीक से पता नहीं है। 1988, 78, वक्त बताएंगी कुछ? 78। जी जी 1978 वक्त पैदाइश का पता है सर, आपको? उस दिन शबे बारात की रात थी और रात के 1 बजे। रात के 1 बजे। जी। आपकी वालदा साहिबा का नाम क्या है? जैनब बी। जैनब बी। जैनब बी। जी जी, हमारे साथ डॉक्टर एम रजा साहब मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम नसरीन परवीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत अल्लाह का एहसान है कि आपसे बात हो गई मेरी। शुक्रिया शुक्रिया साहिबा, आपको शुक्रिया बहुत मुबारक, आपके इस शो का जो कामयाबी की बुलंदी पे जा रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। आप लोगों की व्यूवरशिप ही कामयाबी पर लेकर जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आपकी व्यूवरशिप ऐसी कायम रहेगी। देखिए, जैसे कि आपने जो डेटा बर्थ बताया 22 या 23, आप खुद थोड़ा डाउट में हैं, तो डाउट से यहाँ पर काम नहीं चलता, क्योंकि एक डॉक्टर अगर कहेगा कि बीमारी ये लग रही है वो लग रही है तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दवा नहीं दे सकता। तो बेटर हमारे लिए नाम देख लेंगे, क्योंकि एक्यूरेट बोलना है ना। जब हम बताते हैं इंशाल्लाह आपको कामयाबी की बुलंदी पर जाएंगे, आप खुशहाल रहेंगे। नसरीन परवीन के नाम से और जैनब बी के नाम से अगर देखा जाए तो जो मून साइन बनता है स्कॉर्पियो का, स्कॉर्पियो में क्या होता है, मून को नीचे स्थान कहा गया है, डबलेटेड में रहता है, थोड़ा माइंड कन्फ्यूजन है, खुशहाल में थोड़ा परेशानियां हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हैं, थोड़ा मूड में तो मतलब थोड़ा मूड स्विंग्स कहा जाता है, थोड़ा डिप्रेशन में रहती हैं, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं, ज़्यादा सोचती रहती हैं। सेकेंड हाउस और पांचवें घर का जो मालिक होता है जुपिटर थोड़ा खराब है, जिसकी वजह से देर इज नो पीसफुल मैरिड लाइफ, शादी की लाइफ में सुकून नहीं है, खुशी नहीं, थोड़ा परेशान है, थोड़ा डिस्टर्ब है। इससे बाहर निकलने के लिए जुपिटर को स्ट्रांग कीजिएगा, जिसके लिए आपको येलो सफेयर पहनना है, पुकराज कहा जाता है। येलो सफेयर आपको शादी की लाइफ में सुकून देगा, खुशी देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, तरक्की देगा, डेवलपमेंट देगा आपको। और साथ में मून को डेवलप करना, जिसके लिए आपको मोती पहनना है, मोती असली वाला मोती केशी पर्ल कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। मोती के साथ पुकराज बनाकर पहनिएगा। मोती पहनने से क्या होगा, आपको सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी।
इंसान को सुकून कब मिलता है? हेलो, हाँ बताइए। नहीं करना चाहती हूँ। मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। समझ गया मैं, शादी की प्रॉब्लम है। यस, देखिए आपने हमें बताया भी नहीं है, सिर्फ हम नाम देकर बता दिए कि शादी की मसला है। क्योंकि यहाँ पर शादी क्यों नहीं करना चाहती हैं आप, बताइए। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो आपको करना नहीं है। हेलो सर, बस मुझे बहुत डर लगता है। मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। मैं अल्लाह के बहुत करीब। देखिए बहन, आपका जो कॉल ड्रॉप हो गया है, शादी क्यों नहीं करना चाहती? अल्लाह ताला ने एक अच्छा एक चीज मकाम दिया है शादी के लिए, एक ऊंचा मकाम है। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो हवा को भी बनाया। दुनिया इतनी बड़ी जो चली तो ये शादी के जरिए दुनिया बड़ी, इतनी बड़ी दुनिया बनी। करोड़ों लोग जहाँ दुनिया भर में हैं तो इस शादी के जोड़े से ही हर चीज़ आगे बढ़ रहा है। सुकून का मकाम दिया गया है शादी के लिए। कुरान में निकाह का एक सूरा भी रखा गया है निकाह के लिए, तो निकाह के ताल्लुक से। तो ये हिसाब से आप शादी क्यों नहीं करना चाहती? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, आपके जायचे में मून खराब है। अगर आपकी फैमिली वाले अगर सुन रहे हैं तो उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि मून को डेवलप करें। जब मून वीक हो जाता है तो दिमाग पर असर करता है। मैं पहले बता चुका हूं। सिर्फ देखिए आरिफ साहब, देखिए राहिल साहब, अभी क्या हुआ, उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ दिया रॉन्ग दिया। हमने नाम से देखा तो नसरीन परवीन था और जैनब भी नाम से। तो ये नाम से हमने बता दिया कि मून वीक है, क्योंकि उनका स्कॉर्पियो में डबल बैठा हुआ है। मूड मतलब सेविंग्स रहेगा। एक बार करेंगे, शादी करूंगी कहती हैं और एक बार नहीं करूंगी कहती हैं। थोड़ा डिप्रेशन में रहती हैं, डरूला मिजाज है, ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं, सोच लेती हैं। सोच कभी हकीकत बनने वाली नहीं है। दूसरी बात, जुपिटर खराब है, शादी का बड़ा मसला रहेगा, परेशान रहेगा, डिस्टर्ब रहेंगी। हमने पहले बता दिया पूछने से पहले। तो जुपिटर का वीक होना ये मसला आ गया है। मून का वीक होना, दिमाग में असर हो रहा है। इससे बाहर निकलने के लिए एक मोती पहनना है, साथ में एक येलो सफेद, इंशाल्लाह ताला दोनों बनाकर पहनिएगा। सबसे पहला जो असर होगा, दिमाग सही से काम करेगा, ये कांस्टेंट सोच रहेगी, ये मतलब सिरात मुस्तकीम में निकलने, आगे निकलने का मकाम मिलेगा इंशाल्लाह ताला। फैमिली के साथ कितने दिन रहेंगी? सभी को शादी होकर बाहर जाना है। माँ बाप कितने दिन रहेंगे? आप अपनी जिंदगी करना है। अल्लाह ने आपको इतनी अच्छी जिंदगी दी है, तो आप बेकार में इस जिंदगी को क्यों खराब करना है, क्यों बर्बाद करना है बगैर शादी के? तो ये हिसाब से अगर आपकी फैमिली वाले अगर मेरा पैगाम सुन रहे हैं, उनको चाहिए कि मेरे नंबर पर डायरेक्ट कॉल करें। इंशाल्लाह ताला उनके लिए थोड़ा काउंसलिंग का मरहला रहेगा, हम बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शादी से डरते हैं, शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि देखते हैं कि बहन का ऐसा हो गया, भाई का ऐसा हो गया, और डर जाते हैं। दूसरों की किस्मत को अपने किस्मत से मिला लेते हैं, खुद ही सवाल पैदा करते हैं, खुद ही जवाब ढूंढ लेते हैं, खुद ही परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि काउंसलिंग की जरूरत होती है, इन्फॉर्मेशन जरूरत है इंशाल्लाह ताला। ऐसे अगर कोई उनके फैमिली वाला अगर हमारा पैगाम सुन रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे नंबर पे कॉल कीजिएगा, हम बात करेंगे। बात करने के बाद हमने जो बताया, मोती और येलो सफेद दोनों पहना, इंशाल्लाह ताला जिंदगी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नसीम साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और डॉक्टर साहब ने जो बताया उस पर आप अमल करेंगे इंशाल्लाह। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रजिया सुल्ताना बोल रही हूँ, दिल्ली से। रजिया सुल्ताना साहिबा, दिल्ली से? दिल्ली से बात कर रही हूँ सर। जी, आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, मुझे अपने लड़के के बारे में बात करना था। बेटे का नाम बताइए। मेरे लड़के का नाम सुहेल है। सुहेल जी जी, पूरा नाम बताइए सुहेल का। हाँ, सिर्फ सुहेल ही कहते हैं सर। अच्छा। और बाप का नाम सलाहुद्दीन है जी। सुहेल सलाहुद्दीन ही लिखवाती हूँ मैं हर जगह उनका नाम। अच्छा, तारीख पैदाइश बता दीजिए सुहेल की। उनकी तारीख पैदाइश है 24 अप्रैल है 1990। 24 अप्रैल 1990। वक्त मालूम है आपको? जी, सुबह 10 बजे हुए थे ये। 10 बजे। आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है रजिया सुल्ताना साहिबा? जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपने शोहर के लिए भी अंगूठी बनवाई थी आपके दर से, सलाहुद्दीन की। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपना आइडिया शेयर कर सकती हैं और जो भी सवाल है पूछ सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम रजिया सुल्ताना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आपकी बात करने के लिए तो हम तरस गए आपसे, इतने दिन से कॉल कर रहे हैं। शुक्रिया, चलो आपको बात हो गई आज, लाइन मिल गई आज। हाँ। बेटे के बारे में क्या जानना है? बात करनी थी, बताइए। मेरे लड़के का नाम सुहेल है। समझ गया मैं, उन्हें मंगल के दिन पैदा हुआ है। जी जी, 10 हाँ। बजे पैदा हुआ था सुबह। हाँ समझ गया मैं, उसका उस दिन मंगल का दिन था। हाँ, जरा उनके बारे में मालूम करना था।
उनकी कहीं है ना जॉब के लिए है ना इंटरव्यू देने ही नहीं जाते, और जहाँ जाते हैं वहाँ लगती नहीं है। अब उनका प्रोग्राम हो गया बाहर जाने का। तो इंशाल्लाह हम बता देंगे, आप सुनिएगा, देखिए आप फॉलो कीजिएगा, आपके बेटे को बता दीजिएगा, अगर वो सुन रहा है तो अगर आप रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बेटे को सुना दीजिएगा। जैसे कि आपके बेटे का आपने जो डिटेल्स दिया है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मंगल का दिन था और उनका जो असेंडेंट बना हुआ है जमिनी का है। मैं बता दूं आपको, राहु और केतु के साथ मतलब बीच में जो 7 सितारे जो गर्दिश में बन चुके हैं, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले उनका मेर्क्यूरी खराब है। जब मेर्क्यूरी खराब हो जाता है, इंसान की सोच कम हो जाती है, टैलेंट गुम हो जाता है, इंटेलेक्चुअल खत्म हो जाता है, ये परेशानी सबसे बड़ी आती है। दूसरी बात क्या है, इनके जायचे में वीन मतलब सैटर्न भी खराब है। जब सैटर्न खराब हो जाता है, हर काम में पोस्टपोन करता है, डिले का। जैसे कि आपने कहा कि इंटरव्यूज को जाना नहीं चाहता, यहाँ जायचे में अगर देख लिया जाए तो बाहर जाने का इम्कानात बहुत कम है, क्योंकि इनका डोमेस्टिक कैरियर अच्छा रहेगा। दिल्ली में कर सकते हैं, मतलब हैदराबाद में कर सकते हैं, बेंगलुरु में कर सकते हैं, मुंबई में मतलब हिंदुस्तान के अंदर किधर भी ये सक्सेसफुल रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बाहर जाने के लिए थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर बाहर भी जाएंगे तो 3 साल से ज्यादा नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है पानी के बाहर इनका रिज्क नहीं है, इसी मिट्टी के अंदर इनका रिज्क रखा हुआ है। तो इसके लिए आपके बेटे सबसे पहले जमिनी को स्ट्रॉन्ग करना है, मर्क्यूरी को जिसको एमराल्ड पहनाना है, पन्ना कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक नीलम पहनाना है, ब्लू सफेर कहा जाता है, ये दोनों बनाना है। दोनों बनाने के फायदे क्या होते हैं, जब एमराल्ड पहनाते हैं, पन्ना पहनाते हैं, उससे क्या होता है, आपके लड़के की सोच बढ़ जाएगी, टैलेंट बाहर निकलेगा, हुनर बाहर आएगा, इंटेलेक्चुअल चालाकी थोड़ा आगे बढ़ेगी और सोच भी बढ़ जाएगी, जिससे आपका बेटा अच्छा डिसीजन ले पाएगा। दूसरी बात क्या है, सैटर्न खराब है, जिसकी वजह से हर काम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, काम हाथ को आ रहे हैं, मुंह को नहीं मिल रहा है, इस तरह मुश्किलात हो रहे हैं। इससे वो क्या होगा, काम वर्क ऑन टाइम कहा जाता है। नीलम को पहनने के बाद वक्त पर काम हो जाएगा, पब्लिक रिलेशन बढ़ेगा, दोस्तों से पहचान होगी, नए नए दोस्त मिलेंगे, एक जिंदगी अच्छे मकाम पर लेके जाएगी। आपका फरीजा है बीइंग ए मदर, एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, नीलम। आपको तो रास्ता मालूम है, आपने आपके हस्बैंड के लिए मंगवा कर पहनाया है ऑलरेडी, तो आपके बेटे के लिए भी नीलम और पन्ना पहना, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। रही जॉब का मसला, 2016 अगस्त के बाद अच्छी जॉब आएगी, लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी, डेवलपमेंट रहेगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आपके अपने खास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट और किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाने वाले डॉक्टर एम रजा साहब। रजा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। आइए नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रही? मैं कड़पा से बात कर रही हूँ सर, आंध्र प्रदेश कड़पा। जी, अपना नाम बताइए। आबिदा खानम। आपको अपने बारे में बात करना है? जी, मेरे बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए, तारीख पैदाइश। 22 मार्च जी 1987। वक्त बताएंगी? अर्ली मॉर्निंग 3 AM। जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता चलूं, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थडे आने वाली है और आप खुश नसीब भी हैं कि आपका प्रोग्राम में कॉल लग गया। तो आपकी जो भी परेशानी, अगर कोई परेशानी है तो डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ शेयर कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम आबिदा खानम साहिबा। यस जी साहब, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छी हूँ, बहुत दिन से कॉल करना है आपको कोशिश कर रही थी, आज लग गया। चलो खुशकिस्मत है, क्योंकि आपको बर्थडे का गिफ्ट है कल, 2 दिन बाद आपको बर्थडे है ना। जी सर। ये आज का जो कॉल आपको लगा है बर्थडे का गिफ्ट है, बता रहा हूँ। थैंक यू सर। बताइए क्या जाना है अपने बारे में? जी मेरे बारे में जानना है, फ्यूचर के बारे में। अब ये साल कैसा रहता है? आपकी जिंदगी कैसी है अभी? जी अभी जिंदगी कैसी है आपकी? जी अच्छी है। तो और भी अच्छी रहना, आगे भी अच्छी रहना है। जी हम दुआ करते हैं कि आपकी जिंदगी अच्छी है, आगे भी अच्छी रहे। जैसे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, इसके हिसाब से देखा जाए तो कॉपरिकॉन का बनता है। कॉपरिकॉन में वीनस बैठा हुआ है, वो चालाक हैं और क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी मतलब स्वयं कृषि बोलते हैं ना, खुद को कुछ बनाकर प्रोड्यूस करना, वो चीज़ भी आपके इसमें दिखा रहा है। साथ में थोड़ा सैटर्न क्या हुआ है, मून से मिल चुका है, थोड़ा इनसिक्योर रहता है, थोड़ा डरोला मिजाज है, थोड़ा बहुत जल्दी डर जाती हैं, थोड़ा परेशान में रहते हैं। जैसे कि आपने सवाल किया फ्यूचर के बारे में जानना है,
इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि फ्यूचर भी अच्छा रहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को खल्क किया है। इंशाल्लाह ताला उसी के बताए हुए चीज़ों में दुनिया चलेगी। वो एक सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम में दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। हम दुआ करते हैं कि आप अभी खुश हैं, आगे भी खुश रहें। लेकिन एक सिस्टम है, परेशानियां आती हैं, हम बताते हैं, परेशानियों का हल भी बताते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में परेशानी ना आए, आप खुशहाल रहने के लिए एक एमराल्ड पेन है, पन्ना कहा जाता है, साथ में नीलम पेन है, ब्लू सफ़ेर कहा जाता है, दोनों बनाकर पेन इंशाल्लाह ताला आने वाले मुश्किलात को रोकने के लिए। सदका क्यों निकालते हैं? घर से निकलने से पहले कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे हैं, आराम से हैं, हैंडसम है, सब ठीक हो गया, तैयार हो गए, जाने से पहले सदका निकालते हैं। सदका क्यों निकालते हैं? आने वाली मुश्किलात को रोकने के लिए। उसी तरीके से जवाहरात को क्यों पहनते हैं? जब इंसान कुछ, बहुत से लोग होते हैं कि मैं खुशहाल में हूँ, कोई परेशानी नहीं है, मैं क्यों पहनना है? तो ऐसे लोगों के लिए बता दूं, आने वाले मुश्किलात को रोकने के लिए, क्योंकि मुश्किलात आपके हाथ में नहीं है, तो उसको भी रोकने के लिए जवाहर अच्छी तरह से काम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला खुशहाल रहेंगे। आबिदा खानम, एमराल्ड, नीलम दोनों बनाकर पहनिए, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? तसद्दुक श्रीनगर से बात कर रहा हूँ। तसद्दुक साहब श्रीनगर से, जी जी। प्रोग्राम कैसा लग रहा है? डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 1979। 22 जुलाई 1979 और टाइम है रात के 10:30 बजे। रात के 10:30 बजे। आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है तसद्दुक साहब? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मुझे ना मौजूद हैं। बहुत जी ज्यादा एंग्जाइटी रहती है, जी भारी जी रहता है। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम तसद्दुक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मेरे भाई? बस अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जल्दबाज हैं आप। हाँ जी, बहुत ज्यादा। बताइए तो क्या जानना है आपको? एंग्जाइटी बहुत ज्यादा रहती है, दिल तंग रहता है। ओके, तो उसी के सबसे बड़ी मुश्किल वही है। ओके सर, देखिए आपका जो जन्म हुआ संडे के दिन मालूम है आपको? जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन संडे था, इतवार का दिन था। और आपका असेंडेंट देखा जाए तो पैसा का बना हुआ है, बहुत चालाक हैं, हेल्पिंग नेचर में हैं, हार्ड वर्कर हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर है, जल्दबाज हैं, शार्ट टेम्पर भी हैं, बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं और अपने आप फिर गुस्सा कम हो जाता है। थोड़ा मुश्किलात भी दिखा रहे हैं, हर काम में रुकावटें आ रही हैं, काम में डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, थोड़ा परेशानी ज़्यादा दिखा रही है। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स है उससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे जो जायचे के हिसाब से दिखा रहा है थोड़ा मुश्किलात बहुत हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको कैटई, लहसुनिया कहा जाता है, बिल्ली का आंख भी कहते हैं, कैटसई कहा जाता है, क्रिस्टल बेरिल का होता है, मिनिमम 5 कैरेट का, साथ में ये गोमेद हैसोनेट कहा जाता है, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनिएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, जल्दबाज और शार्ट टेम्पर में क्या होता है, अपना तनाजुल आप भूल जाते हैं, मतलब सडन्स में आप फैसला ले लेते हैं जिसका खामियाजा आपको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है, परेशानी बहुत होती है। उस परेशानी को रोकने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए कैटसई और गोमेद दोनों का बनाकर लॉकेट पहने, इंशाअल्लाह खुशहाल रहेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। जवाहरात का करिश्मा या रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने लोगों की ज़िंदगी में किस तरह से खुशियां लाई हैं, लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में, डॉक्टर इमाम रजा के बारे में क्या कहना है, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में दोनों जहान की बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। उसकी कुदरत का एक अजीम करिश्मा है ये जहान फ़ानी, और इस जहान फ़ानी की अशरफ तरीन तख्लीक है हज़रत इंसान। कायनात में इंसान के जीने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम मुकर्रर किया है जिसमें इम्तिहान भी है, आजमाइश भी, राहत भी है, तकलीफ भी, सेहत भी है, बीमारी भी, और साथ साथ नजात की राहें भी और जरिए भी। इंसान को मालिक व मौला ने जहन जैसी नेमत से नवाजा कि इल्म सीखो और मुश्किलात का हल तलाश करो। इंसान को जिंदगी के सफ़र में सेहत और तंदुरुस्ती के अलावा भी कई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कामयाबी और शिफा तो अल्लाह ही के हाथ में है, लेकिन राह इंसान को बताई है, हर परेशानी के साथ उसका हल भी दिया है। खोज लगाना हजरत इंसान के जिम्मे है। जैसे तबीब या डॉक्टर सेहत याबी के लिए दवा देता है, वैसे ही दूसरी परेशानियों के लिए नजात और इलाज के कई और जराए भी हैं। कोई जरिया मुश्किल, कोई सख्त तो कोई खूबसूरत। जी हाँ, चौंकिए नहीं, कादिर मुतलक ने कायनात की हर शय
इंसान के इस्तेमाल के लिए ही बनाई है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। ये जानते हैं कि आम तौर पर लकी स्टोन और जेम्स स्टोन जिसे कहा जाता है उसकी खुसूसियात क्या हैं। ये नेमतुल्लाह हैं, यानी अल्लाह की नेमतें। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने याकूत और मरजान का जिक्र किया है। पत्थर अनोखी खुसूसियात का ठोस मजमुआ होते हैं, लेकिन पत्थरों और जवाहरात के ढेर से मुआलिज यानी इलाज करने वाले की खुसूसियत रखने वाले गौहरे नायाब को ढूंढ निकालना माहिर नजर या एक्सपर्ट का फन होता है। ऐसे ही माहिर फनकार रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स 50 सालों से गौहरों के जरिए लोगों की खिदमत का काम अंजाम देते आ रहे हैं। रासिक के तमाम जेम्स माइन से निकाले गए हैं। असली जेम्स को परख कर तराश कर 100% वारंटी और सनद व सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। हमारे पास कुदरती रूबी, येलो सफायर, नीलम जैसे बेहतरीन व बेशकीमती जेम्स दस्तयाब हैं। ये जेम्स कुदरती तौर पर बेहद असरदार होते हैं। नाज़रीन करम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरज की तपिश से इंसान को सेहत मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही गोहर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। राशिक जेम्स ज्वेलर्स रजा साहब जो हैदराबाद में यहाँ दुकान लगाए हैं, और डॉक्टर रोशन साहब, ये बहुत बड़ा रिसर्च करने के बाद और ये आदमी के नाम से और स्टार के हिसाब से उसे पतारों के ताल्लुक से देख के गौर करके, चूँकि वो मैं दोनों भाइयों ने उसमें PhD की है, काफ़ी अच्छी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कम लोग हैं जो इंसान के स्टार्स देखते हुए और उनका लिए नग जो है चॉइस करते हैं, तो वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, आ सकते हैं इस दुकान को, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा, और मेरे महबूब नगर MP साहब भी 2 साल पहले बहुत कमज़ोर हो गए थे, यहाँ आपके पास आकर नग लेने के बाद से रज़ा भाई के पास से काफ़ी हेल्थ में तब्दीली आई, सेहत काफ़ी अच्छी है। और इस्लाम में भी हकीक पहनते हैं लोग, नग पहना करते थे। बहुत से लोग जब मदीना शरीफ जाते हैं तो मैं देखा हूँ वो हकीक ख़रीद कर लाते हैं, और यहाँ पर रज़ा भाई और उनकी फैमिली बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और मैं ख़ास तौर से MM हुसैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहाँ पर आवाम की परेशानियों के हल के साथ साथ असली गौहर भी सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हों, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हों, या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स एक ऐसा मकाम है जहां पर आम आदमी से लेकर मशहूर और मारूफ नामवर हस्तियों ने भी इनकी खिदमत हासिल की। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी रियासत में गौहरों के लिए बिल्कुल सही मुकाम रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स है। इन गौहरों से बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। इन गौहरों को पहनिए, क्योंकि ये गौहर सबके लिए बेहतर और फायदेमंद है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। मैं बेंगलुरु का मेयर B वेंकटेश मूर्ति। आपको चाहे कारोबार की परेशानी हो या सियासी परेशानी या फिर घरेलू परेशानी, आप सीधे रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स से मुलाकात करें और अपनी परेशानियों को हल करें। आज मैं जहां पर भी हूं उसकी वजह रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, खीमती स्क्वायर, फर्स्ट फ्लोर B4, हैदराबाद। हमारा बेंगलुरु का पता है G3 ब्रिगेड गार्डन, 19 चर्च स्ट्रीट, बेंगलोर। ईमेल rasikgemshyd@gmail.com, वेबसाइट rasikgems.com। Rasik Gems and Jewelers, one visit can change your life, only one visit can change your life। तो नाज़रीन, आपने देखा कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने किस तरह से लोगों की परेशानियों में खुशियों में बदल दिया है। लोगों का क्या कहना है रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में, ये आपने जाना। डॉक्टर साहब, जैसे आपके पास लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं जिनकी परेशानियां ख़ास करके शादी के मुतालिक, जैसा कि हमने कहा भी था, और अभी एक हमारी बहन नसरीन साहिबा का सवाल भी आया था जिसका आपने जवाब भी दिया कि सूरह निसा में
نکاح کے بارے میں بھی آیا ہے. جو لوگ شادی نہیں کر پا رہے ہیں یا جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں ان کو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے جو نسرین صاحبہ کا جو سوال تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ خدا کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے کہ قرآن میں سورہ نساء میں نکاح کے بارے میں ذکر کیا گیا، شادی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. سورہ طلاق میں ذکر کیا گیا، طلاق شادی ہوگی تو طلاق ہوگا نا، تو سورہ طلاق ہی آ گیا ہے. تو سورہ طلاق میں ذکر کیا گیا ہے، سورہ نور میں ذکر کیا گیا ہے، سورہ مومنون میں ذکر کیا گیا ہے. یہ ایک دوسرے کے احترام کے بارے میں بتایا گیا. سورہ نوا جس کو اما یتسرون کہا جاتا ہے، کہ اس میں خدا نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا. مطلب ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، مطلب کیا ہے؟ ہر انسان کے ساتھ ایک عورت کو پیدا کر دیا ہے. اور ایک بہت بڑی کہاوت بھی ہوتی ہے کہ نکاح جو ہے عرش پر ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا ایک انعام ہے جس کے نکاح کے بارے میں، جس کی شادیوں کے بارے میں 4-5 سوروں میں اس کو استعمال مطلب واضح کیا گیا ہے، مطلب بہتر طریقے سے بتایا گیا. جیسے ہم نے کہا سورہ نساء میں ہے، سورہ طلاق میں ہے، سورہ نور میں ہے، سورہ مومنون میں ہے، سورہ نبا جس کو اما یتسرون بھی کہا جاتا ہے. اتنے 5 جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے تم جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. شادی کے بارے میں بیان کیا گیا، تو شادی کرنا ہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دماغ میں کب آتا ہے؟ جب ستارے گردش میں آتے ہیں تو یہ انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے. اتنا بڑا ایک انعام اللہ کی طرف سے ہے. ایک زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک سسٹم ہے. جنریشن جو آگے بڑھنا ہے نا، ایک سسٹم ہوتا ہے. نصیر صاحب اس میں کیا ہوا ہے؟ مون ڈبلیٹن بیٹھا ہوا ہے، نیچے گرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ موڈ سوئنگز کہا جاتا ہے، کنفیوژن کہا جاتا ہے، ڈپریشن کہا جاتا ہے، ڈرولا مزاج کہا جاتا ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ شادی میں ٹرائی کرتے ہیں، تو شادیاں ٹرائی کرنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ رشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تھوڑا بیزار ہو جاتے ہیں اور مشکلات میں آ جاتے ہیں. یہ سارا کب ہوتا ہے؟ جب ستارے گردش میں آ جائیں. کیونکہ اپنا دماغ چلانے والا جو ہوتا ہے مون، اگر مون صحیح نہیں رہا تو انسان کنفیوژن میں آ جاتا ہے. لڑکیوں کے ذائچے میں اگر جوپیٹر خراب رہا، میں کتنی بار کہہ چکا ہوں، شادیوں میں مسئلے آتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈیلے ہونا، ایک شادی کے بعد مشکلات آنا. اور نمبر 3 جو ہوتا ہے لڑکوں کے ذائچے میں جو ہوتا ہے، اگر وینس ویک رہا تو یہ مشکلات آتی ہیں. شادی ڈیلے ہونے کے بعد مشکلات میں آنا. یہ حساب سے شادی کا بہت بڑا مقام ہے، تو نکاح کا بہت بڑا مقام ہے. اس کے لیے تو شادی کرنا. نسرین صاحبہ اگر ہمارا میسیج سن رہے ہیں، اگر 2 کے اوپر اگر ہمارا میسیج اگر ان کو مطلب اس کے اوپر عمل کر دیں گے تو ہمارا جو ہم اتنا اسٹرگل کریں لوگوں کے لیے سروس دے رہے ہیں، کیونکہ خدمت خلق خدمت خدا جو سب سے بڑا یہ کہا جاتا ہے، لوگوں کی خدمت کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. تو حساب سے تو یہ حساب سے قرآن میں بھی ذکر کیا گیا. تو اتنا بڑا مقام ہے شادی کا. تو نسرین صاحب کو چاہیے کہ وہ شادی کریں، زندگی خوشحال رہیں. مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اسے باہر نکلنے کے لیے راستے ہیں. انسان بیمار ہونے کے بعد کہ زندگی چھوڑ دیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج کرواتا ہے، میڈیسن لیتا ہے. کتنے لوگ آپریشن کروا لیتے ہیں. انسان اپنے آپ کو کاٹنا مطلب پسند کر لیتا ہے، کیونکہ زندگی میں جینا ہے، آگے بڑھنا ہے. جو ہارٹ کا جو پرابلم ہوتا ہے، اوپن ہارٹ سرجری جو ہوتا ہے، دل بازو نکال کے رکھ دیتے ہیں. اتنا بڑا مقام پر انسان راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے زندگی جینا ہے، آگے بڑھنا ہے. تو یہ مقام اللہ نے انسان کو دیا ہے. اللہ کی امانت ہے. اس امانت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، کیونکہ بدن اللہ کی امانت، بیوی امانت ہے. تو اس کو ہم صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرنا، آگے بڑھنا ہے. جواہرات کرشمہ یہاں کے جو پلیٹ فارمز ہم جو بتا رہے ہیں، ہر مشکلات کا حل جواہرات میں رہے گا، ہر پریشانی کا حل جواہرات میں رہے گا. بشرط یہ کہ توفیق ہونا ہے. توفیق کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ تعالی ہر کوئی جواہرات کے پہن سکتا، زندگی میں خوشحال رہ سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے اتنا اچھا میسیج دیا ہمارے ناظرین کو. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بنگلور سے بات کر رہی ہوں. نام ہے سیدہ شمیم النساء. نام بتائیے اپنا. سیدہ شمیم النساء. مجھے میرے والد صاحب کے بارے میں جاننا تھا. نہیں آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی نا. جی میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں. میرا نام ہے سیدہ شمیم النساء. سیدہ شمیم النساء. جی جی آپ کو اپنے بارے میں بات کرنا ہے؟ نہیں میرے والد صاحب کے بارے میں. والد صاحب کا نام بتائیے. سید سمیع اللہ. سید سمیع اللہ. جی جی ان کی تاریخ پیدائش؟ تاریخ پیدائش نہیں پتا ہے. آپ کی دادی کا نام؟ سیدہ رحمت النساء. جی سیدہ رحمت النساء. سیدہ رحمت النساء. جی کیا جاننا ہے آپ کو اپنے والد صاحب کے بارے میں ڈاکٹر؟ جی 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 سنیے جی دعا کی درخواست کرتی ہوں آپ سے. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. شمیم النساء صاحبہ کیسے ہیں آپ؟ بس الحمدللہ آپ کی دعا ہے. ٹھیک ہوں. بتائیے کیا جانا آپ کے والد صاحب کے بارے میں؟ کچھ بول رہے تھے آپ، دعا کیجیے بول کے. جی میرے والد صاحب جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں. اوکے. اور کچھ ابھی ایک بار وہ حج پہ بھی جا رہے ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو جیسے شفا مل جائے اور حج پر جائیں، کامیاب سفر رہے، کامیابی سے واپس لوٹیں. بہت پریشانی ہے، وہ سائٹ میں کچھ اٹک گیا ہے پیسہ ویسا دے کے.
पैसा दे के भटक गए हमारी साउथ इंडिया की रजिस्टर नहीं जवान हो रहा है। पैसा वैसा दे के अटक गए हैं चलो अच्छी बात है। सैयदा शमीम उन्नीसा साहबा, आपने जो वालिद साहब के सामने बारे में जो पूछा है सवाल, हार्ट का प्रॉब्लम है, परेशान है, यहाँ पर दिखा रहा 2007 से ये मुश्किलात कर रहे हैं, मुश्किलात मतलब वो फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम को, ये मुश्किल को वो देख रहे हैं। और आप बताया फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी हैं यहाँ पर। अगर देखा जाए जायचे के हिसाब से देखा जाए तो समीउल्लाह और रहमतुन्निसा के नाम से देखा जाए तो मून से जो बनता है एक्वेरियस का, सैटर्न खराब है, थोड़ा परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, हर काम में अटकाया हुआ है, परेशान कर रहा है आपको। साथ में आपके वालिद साहब का मर्क्यूरी खराब है, जिसके हिसाब से स्टेबिलिटी डेवलपमेंट चला चुका है और हेल्थ का भी थोड़ा इश्यूज आ रहा है, हेल्थ के भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, साथ में ब्लू सफ़ेद नीलम कहा जाता है, दोनों बनाकर पहना, इंशाअल्लाह खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और हम दिल से दुआ करते हैं कि आपके वालिद साहब जल्द से जल्द उनको शिफा मिले और उनका हज कामयाब रहे, कामयाब तरीके से हज पूरा कर कर घर वापस लौटें इंशाअल्लाह। हम उसके लिए दिल से दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन को इतने अच्छे मशवरे दिए, उनके सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत करी, प्रोग्राम को देखा, प्रोग्राम में कॉल किया। इसी के साथ प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।